with the others in this rat race. So I, Muskan Tyagi, on behalf of the Ecomaniacs Economic Society of Shamlal College, welcome you all to the very first skill enhancement workshop on our programming language. The 2010 actively participates in conducting various educational and recreational events, reaching students from all over the Delhi University and beyond. In its inception, the society has successfully conducted a number of seminars, workshops, and competitions to foster a broader understanding of economics among the bright minds of this university. Even after the restrictions on gathering due to COVID 19, the society was determined to engage students by conducting numerous webinars and e competitions on a wide range of topics in the field of economics and business. So, before we move ahead, I would like to strictly advise you to follow these guidelines for the smooth conduction of today's session. First, please keep your cameras and microphone off during the webinar. You will be expelled from the session if your cameras or microphones are found on. Please do not raise hands during the session. You can drop your queries in the chat box and sir will answer while the session is going on, or else they will be answered by the end of the session. You cannot really talk about the brilliance of this college without bringing up the teachers responsible for its development. So I would like to invite Jyoti ma'am, the convener of a society, to speak a few words. Uh, for the success of society, not only teachers but students are equal credit goes to the students. I warmly welcome Siddharth Rathore to the seminar, and he's a very diligent, intelligent, and hardworking person. And I know him since past 10 years. He came once to the college when he was a student. So, but though he's quite junior to me, but I myself feel motivated and inspired by him. And one more thing that I would like to tell, his father was a professor in our college, Professor Rathore, and he was such a. He is one of the our seniors who have retired, but we are still in touch with him. And the important thing about him is that whenever we call him about anything, sir instantly replies. And if due to some reason he's not able to pick a call, he will call back 5-10 minutes. Despite he himself is very busy, but the sir is still very concerned and caring. And sir, I would say कि हमें लगता ही नहीं कि he is so senior to us. हमें लगता है कि बस he just like a friend and we can call him anytime. आप सुबह के 5 बजे भी कॉल कर सकते हो, he will reply. So he's such a nice person, and I really appreciate Rathore sir. And when it comes to Siddharth, I was desperately looking for someone who can organize, who can give sessions to our student on R. मैं बहुत ढूंढ रही थी पर मुझे कोई बंदा मिल नहीं रहा था. Then suddenly Siddharth name struck me. Called Rathore sir. He said कि वो आएगा ही, मना करने का तो कोई reason ही नहीं है. And you just call him, he will definitely come. And I called Siddharth and he just gave time. And so thank you Siddharth for coming to our college. And more importantly, Siddharth के साथ हमारा एक informal relation है. तो ये मुझे पता है, he'll go an extra mile for my student to do whatever they want. ठीक है. तो बट ये है कि एफर्ट सिद्धार्थ सर की तरफ से नहीं रहेगा, आप लोगों की तरफ से भी पूरा रहना चाहिए. बी वेरी केयरफुल, वेरी अटेंटिव. ठीक है. और जहाँ पे भी तुम्हें कुछ क्वेश्चन है, जस्ट ड्रॉप योर क्वेरीज एंड सर विल आंसर योर क्वेरीज एट द एंड ऑफ सेशन. ठीक है. सो बट ये है कि जो भी आज पर, और एक वन मोर थिंग कि जो भी सर आज के लेक्चर में बताएंगे उसको आफ्टर द सेशन यू जस्ट रिवाइज इट. ओनली देन you can learn as much as you want. So I would not speak much, I would not take much time. So thank you Siddharth. You're most welcome, ma'am. Okay, thank you so much. You're most welcome, ma'am. Thank you. Thank you for having me. Okay. So first of all, thank you Muskan for the introduction, and thank you ma'am. Now just to carry that forward, yes, I consider Shamlal College as my paternal college. My father has served there for 42 years in the commerce department, and I also hail from a family who served Delhi University for 100 years, all of our experience. So it's a privilege to be here and to teach.
So let's start. I'll stop sharing my camera and I'll start sharing my screen. Now, I hope that all of you have downloaded R, and I'll be bilingual. So English and Hindi में. And what I want you to do is, if you must have already downloaded R and downloaded R Studio. I'm hoping for that. And उसके बाद I had also sent a file, Introduction to R SLC Workshop Day 1. So we'll be working on that. And I'm going to assume कि आप लोगों को कुछ नहीं आता. मैं बिल्कुल बेस से शुरू करूँगा कि आप लोगों ने ये कभी नहीं देखा है, मतलब सिर्फ डाउनलोड करने के अलावा आपको अपने कभी R का इंटरफेस नहीं देखा है. So I'll start with the bare minimum that is there, and then onwards we will start. And the other thing is कि instead of asking questions in the end, if you can ask the questions then and there by unmuting yourself. See, कोडिंग लैंग्वेज जो होती है, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज अगर आप करोगे तो वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि आपको एरर ज़रूर आने चाहिए. अगर आपके लैंग्वेज के अंदर, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, चाहे वो पाइथन हो, आर हो. बाय द वे, आई एम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एट पाइथन इज़ माई गो टू लैंग्वेज. बट अगर आपको एक लैंग्वेज आती है तो दूसरी लैंग्वेज आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि कमांड्स बहुत सिमिलर होते हैं. आप कोई भी लैंग्वेज पिकअप कर लीजिए. So I was trained in Python, and I have a degree in artificial intelligence and machine learning. So that was primarily based on Python. But then since HS31 जो आपका कोर्स है डेटा एनालिसिस का, वो R में है, तो I also grew interest in R, and it's a natural flow. अगर आपको एक कोडिंग लैंग्वेज आती है, तो अगर आपको R आती है तो you can easily move to Python. Now ये कई बार क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि हमें पाइथन पढ़ना चाहिए, R पढ़ना चाहिए. आप कोई भी पढ़ लीजिए, कोई भी लैंग्वेज कर सकते हैं. एक लैंग्वेज आ गई तो दूसरी भी आ जाएगी. और जो है वो अकेडमिक्स के लिए ज़्यादा यूज़ होती है. इट्स अ स्टैटिस्टिशियन, इट्स एन अकेडमिशियंस लैंग्वेज. वेराज पाइथन इज़ एन इंडस्ट्री लैंग्वेज. अगर आप कहीं पे भी कॉर्पोरेट में जाओगे तो 70% कॉर्पोरेट, 80% कॉर्पोरेट आपसे पाइथन मांगेगा. बट आपको ईजी होगा क्योंकि लॉजिक सिमिलर तरीके से बिल्ट होता है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. एंड द अदर थिंग दैट आई वाज सजेस्टिंग वाज कि अगर आपके पास एरर आ रहा है, दैट मीन्स यू आर लर्निंग. अगर आप सिर्फ कोड रन कर रहे हो, मैंने तो आपको सारे कोड्स प्रोवाइड करा दिए, बट अगर आप सिर्फ उन्हीं के बेसिस के अगर आप सोच रहे हो कि वो उसके बेसिस पे आपका हो जाएगा, तो आप बिल्कुल नहीं सीख पाओगे. सो द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ ओपन अप अ न्यू. आप ये वाली जो आपकी ये वाली जो विंडो है आप ओपन रखिए साथ में, बट आप साथ में एक और न्यू आप वो स्क्रिप्ट खोल लीजिए, न्यू फाइल करके यहाँ पर न्यू आर स्क्रिप्ट खोल लीजिए. उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि यू विल मेक दोज एरर्स. आई वॉन्ट यू टू मेक एरर्स. अगर आपने एरर्स नहीं करे तो आप नहीं सीखेंगे. ठीक है. दूसरा कि जहाँ पर भी आप अटक रहे हो वहाँ पर आप बताइए अनम्यूट करके कि ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है. बिकॉज एक बार आप पीछे रह गए कोडिंग में, अगर आप पीछे रह जाओगे तो आप एकदम से डीमोटिवेट हो जाओगे कि नहीं मुझसे तो नहीं हो रहा है, एंड अब मैं क्लास छोड़ देता हूँ. तो इसीलिए कोडिंग आपको तभी आएगी. बी पेशेंट विद इट. एंड गलती हो रही है, अच्छी बात है, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके वील डू इट. एंड जस्ट इन केस अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, यू ऑलरेडी हैव माई सोल्यूशंस. यहाँ पर इस वाली फाइल के अंदर तो सब कुछ दे रखा है, सारे आपके पास सारे कोड्स ठीक से आए हुए हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बाद में देखने के लिए. बट डू नॉट जस्ट कॉपी, जस्ट इसी फाइल के ऊपर काम नहीं करना आपको. आप एक सेपरेट फाइल पे काम कीजिए, सो दैट आई वॉन्ट यू टू मेक दोज मिस्टेक्स एंड देन आस्क मी कि क्यों हुआ. ठीक है. इसको मिस्टेक्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं बग्स आना, और जब हम मिस्टेक्स को ठीक करते हैं उसको हम बोलते हैं डीबगिंग. तो आप जब जो आउटपुट आएगा उसमें बग जब आएगा तो मैं उसको हेल्प करूँगा कि डीबग कैसे करना है उसको. तो बग्स आना इज़ अ गुड साइन. अगर बग्स नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग द लैंग्वेज. आई होप इस फ्रेमवर्क से हम शुरू कर सकते हैं. राइट फोक्स, everyone has downloaded. Just type in the chat box if all of you have downloaded R and you have this file, you have this R Studio. तो R क्या है? R लैंग्वेज है, बट उसके ऊपर बिल्ट जो है वो ये जो इन्वायरमेंट है ये R Studio का है. एंड इस R Studio के थ्रू हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से विजुअलाइजेशन हमारा बेटर हो जाता है. वी कैन ईजिली मैनेज. इट्स सिमिलर टू पाइथन ऑल्सो, कि मतलब पाइथन के साथ में हम कई बार एनाकोंडा यूज़ करते हैं. तो अगेन एनाकोंडा जो है हमें हेल्प करता है कि हम डिफरेंट आर की स्क्रिप्ट्स भी रन कर सकते हैं, जुपिटर फाइल्स भी रन कर सकते हैं, स्पाइडर को भी यूज़ कर सकते हैं. तो मल्टीपल चीज़ें हम कर सकते हैं. खैर, लेट्स स्टार्ट विद दिस. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू
इज़ दैट हम कई बार डायरेक्टरी देखते हैं. मैंने यहाँ पर एक कोड डाला हुआ है डायरेक्टरी का कि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, इसके बारे में हम आई गो बैक अगेन. बट एक और चीज़ है यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले, आई एम श्योर कि आप सबके सिस्टम्स पे ये ब्लैक कलर की वो नहीं आ रही होगी. नाउ वाई इज़ इट ब्लैक फॉर मी इज़ बिकॉज मुझे कभी भी कोई कोडिंग लैंग्वेज अगर आप सीखते हो तो योर बैकग्राउंड शुड बी ब्लैक, क्योंकि उससे क्या होता है आपको एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता आप जब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो वाइट लाइट होगी तो स्ट्रेन पड़ेगा. तो इसीलिए इट्स बेटर टू हैव अ ब्लैक बैकग्राउंड. और उसको कैसे करना है, अगर आप यहाँ पर जाएंगे टूल्स के अंदर, वेट पैकेजेस, हाँ हेल्प के अंदर एक्सेसिबिलिटी नहीं, जस्ट अ सेकंड फोक्स, टूल्स, विजन कंट्रोल, पैटर्न्स, मेमोरी, ग्लोबल ऑप्शंस. यस, आप टूल्स में जाइए, ग्लोबल ऑप्शंस में जाइए. ग्लोबल ऑप्शंस में आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और उसके अंदर आपको यहाँ पर एक अपीयरेंस मिलेगा. अपीयरेंस में आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सा अपीयरेंस यूज़ करना है. जैसे मैं वाइब्रेंट इंक यूज़ कर रहा हूँ, आपको इस तरीके से दिखाई देगा, सो दैट इट्स मच मोर ईजियर टू यूज़. एंड आप फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपना जूम वगैरह सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू. सो इस तरीके से इट इज़ काइंड ऑफ ईजी ऑन द आई while you are writing. So you can do that, and then we will start with R. Now if you see कि why have I used this black background is that जब आप black background use करते हो तो उसके साथ में you can highlight different colors and then you can write and becomes much more smoother in your entire journey. और ये जो आपकी स्क्रिप्ट है ये जितनी अच्छे तरीके से फॉर्मेटेड होगी उतना आसान होगा आपको भी पढ़ने में. इट्स समथिंग लाइक योर हैंड राइटिंग. सो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो जो एग्जामिनर है उसको भी मज़ा आता है पढ़ने के लिए. ठीक है, तो ये भी एक तरीके का वही आपका एक्सप्रेशन है कि जितना नीट आपका कोड होगा, जितना नीट आपका एडिटर होगा, उतना आपको समझ में आएगा कि अच्छा कि मैंने क्या कोडिंग करी है. सो व्हाट आई डू इज़, जब भी कोई चीज़ आपको रन नहीं करनी है आर के अंदर, इन द सेंस कि कभी कोई आपको सेंटेंस लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो आप वहाँ पर हैशटैग यूज़ करो. तो हैशटैग जैसे आप यूज़ करोगे तो वो आपका कभी भी कोड नहीं रन करेगा. वो उसको आर को समझ में आ गया कि ये जो है यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, द पर्सन हु इज राइटिंग द कोड इज़ नॉट इंटेंडिंग टू रन दिस पर्टिकुलर लाइन. तो लाइक दिस इज़ माई फर्स्ट आर क्लास. तो इस तरीके से यू कैन राइट इट. एंड इफ़ यू वांट टू चेंज कलर, जैसे हम व्हाट्सएप में क्या करते हैं, व्हाट्सएप के अंदर अगर हम उसको बोल्ड करना चाहते हैं तो हम स्टार मार्क कर देते हैं आगे एंड पीछे. सिमिलरली यहाँ पर आप ये लगा के सिंगल कोट लगा के, जस्ट अ सेकेंड फोक्स, सिंगल कोट लगा के अगर आप ओपन ब्रैकेट करोगे और ऐसे करोगे, देखो इसका कलर चेंज हो गया. सो इस तरीके से व्हाट आई डू इज़ व्हेन आई एम राइटिंग कोड्स आई मेक श्योर कि मैं डिफरेंट कलर्स में उसको लिखूँ, सो दैट मुझे ही समझ में आ जाए एंड में कि मैं क्या कर रहा हूँ. देन लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट. यस, really sorry sir to interrupt you in between. Yes. But actually there are some students who are finding it difficult to open the file that you have sent in the WhatsApp group. It's a R file. It's a simply R file. I'll just show it to you. I'm not sure what's the difficulty there. आपने ये I'm sending you another file. वैसे तो यही वाली फाइल है. सिंपल इस फाइल को डबल क्लिक करते तो हो जाती, नहीं तो व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज़ आप यहाँ से भी फाइल्स पे जाके कर सकते हो. डबल क्लिक करके नहीं खुल रही है क्या वो फाइल? No sir, it's not happening for some. For some of you, for all of you? No, for some of them. Are you able to open it? Yes, sir, we do. Chirag, have you downloaded R Studio? Yeah. Okay. Anyone else facing this problem? Okay. Just a second. What I'll do is I'll send you another file. Hold on. Where is your group? Give me 1 second, folks. I'll just send you this file again. Try it. Try this or try this.
both are essentially the same. It's just that this is my class, this is the file that I use in Gargi. All you need to do is double click, or you can do open file, and open file यहाँ से open करके आप कर सकते हो. जैसे ये हमारी फाइल्स हैं, तो यहाँ पर जाके you can just open intro to R इस तरीके से, and it will open up इस तरीके से. shouldn't be a problem. आपके R Studio के इंस्टॉलेशन में हो सकता. Actually, the file is not downloadable. आप मोबाइल में कर रहे हो क्या? No, sir, on laptop. That's not possible. Why is it not downloadable? Everyone else, इसके अलावा बाकी लोग कर पा रहे हैं ये चीज़? No, sir. It's the same problem. Okay. Fine. So what we'll do is we'll simultaneously run the file. आप साथ साथ लिखते रहिए, साथ साथ कोड करिए. I'll send you an alternative, but आप साथ साथ कोड कीजिए. That should solve. ठीक है, चलिए. So just now running the commands. ठीक है, I'm not expecting you to have the file. ठीक है, even if, but for some of you it's running, right? Yes, sir. Okay, great. So जिनके पास नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. What you can do is I'll send you another file, I'll mail it to you, and just check if that runs. If it doesn't, then, और by the way पहले आपको R डाउनलोड करना था और उसके बाद R Studio डाउनलोड करना था. अगर आपने सिर्फ R Studio डाउनलोड किया हुआ और R नहीं डाउनलोड किया हुआ तो नहीं चलेगी. ठीक है, दैट कुड बी द अदर प्रॉब्लम. ठीक है, सो जस्ट जिन सबके पास R Studio तो खुल ही गया है, तो जस्ट टाइप इन get wd. ये वर्किंग डायरेक्टरी होती है बेसिकली, जहाँ आपकी सारी फाइल स्टोर हो रही हैं, जो आपका जहाँ से आपका R काम कर रहा है. सो कोई भी अगर आपको कोड रन करना है R के अंदर, तो आपके पास जो कमांड होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कई तरीके होते हैं. व्हाट यू कैन डू इज़ यहाँ पर करके आप इसको ये रन का जो आइकन है ये कर सकते हो, या फिर कंट्रोल एंटर कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास मैक है तो कमांड और एंटर है. सो वंस यू रन दिस यू विल गेट कि आपका जो आपकी सिस्टम है वो कहाँ से फाइल्स उठा रहा है. यहाँ पर मेरे सी ड्राइव के अंदर यूज़र्स में यूज़र है, डेस्कटॉप है, R है, और इंट्रोडक्शन टू R है. वो मेरी यहाँ पर वर्किंग डायरेक्टरी है. और अगर मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में कोई भी फाइल है तो उसको वो यहीं पे दिखा देता है. आप यहाँ पर देखिए, ये वर्किंग डायरेक्टरी मुझे यहाँ पर पूरी दिखा रहा है. आई एक्सप्लेन यू कि ये 4 विंडोज़ कौन कौन सी हैं, बट यहाँ पर आपको वर्किंग डायरेक्टरी दिखा देता है और यहीं से आप सीधा क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो पर्टिकुलर फाइल. तो चेक व्हाट इज़ योर वर्किंग डायरेक्टरी. आप मोस्ट ऑफ यू आप में डॉक्यूमेंट्स आ रहा होगा, कुछ डॉक्यूमेंट करके रन हुआ ये फाइल, ये कमांड रन हुआ. ओके, सो आई विल ऑल्सो टीच यू कि आप चेंज कर सकते हो वर्किंग डायरेक्टरी. सेट wd करके यू कैन गिव अ पाथ एंड देन चेंज इट. बट फॉर नाउ यू शुड नो कि कहाँ से आपकी फाइल्स जो हैं वो पिकअप हो रही हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सर्टन कैलकुलेशंस. नाउ इवन बिफोर कैलकुलेशंस आपको मैं ये पूरा इंटरफेस समझा देता हूँ. ये जो है आपका, ये आपका स्क्रिप्ट एडिटर है, जहाँ पर आप जो है स्क्रिप्ट्स रन करोगे. जो भी आपको कोड करना है, जो भी आपको कमांड लिखना है वो आप यहाँ लिखोगे. आप नीचे भी लिख सकते हो, बट इट्स बेटर कि आप यहाँ पर कमांड्स लिखो. जो भी आपको कोडिंग करनी है वो आप यहाँ कीजिए. उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा कि कोडिंग में एरर आया, नहीं आया, किस बात के लिए एरर आया. सो दिस विल गिव यू द रिजल्ट दैट इज दैट विच इज़ कॉल्ड एज द कंसोल. देन ये जो है ये आपका एनवायरनमेंट, हिस्ट्री और ट्यूटोरियल्स वगैरह, इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा. बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पर. और ये आपको वेरिएबल्स देगा कि आपके पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, डेटा कौन कौन सा है आपके पास. जैसे जैसे हम आगे सेशंस में जाएंगे I'll शो यू कि यहाँ पर आपके पास कौन कौन से डेटा सेट हैं जिसको आप क्लिक करके एकदम से यूज़ कर सकते हो. एंड ये वाला जो आपका बॉक्स है, इसके अंदर आपके पास फाइल्स हैं आपकी. एज यू कैन सी ये फाइल्स वो हैं जो मेरे जो मेरा वर्किंग डायरेक्टरी की फाइल्स हैं. आप कहीं और से भी फाइल्स उठा सकते हो. प्लॉट्स जब हम बनाएंगे इन दिस कोर्स, मे बी टुमारो आई विल टीच यू हाउ टू have beautiful graphs in terms of bar graphs, pie charts, या फिर say time plots, या box plots. ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में एंड स्टैटिस्टिक्स में ज़रूरी हैं. सो ऑल ऑफ दोज प्लॉट्स विल बी कमिंग हेयर. एंड यहाँ पर आपके आएंगे पैकेजेस. आई विल आस्क यू टू इंस्टॉल सर्टन पैकेजेस.
तो वो पैकेजेस आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो. आपको क्या कहते हैं, इंस्टॉल करने के लिए आप कमांड भी लिख सकते हो. आई विल शो यू हाउ टू राइट दोज कमांड्स एंड हेल्प. तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. बट लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन विद सर्टन बेसिक कैलकुलेशन. जैसे किसी भी कोई भी लैंग्वेज आप पिकअप करते हैं तो अल्टीमेटली हम लैंग्वेज इसीलिए यूज़ करते हैं टू हैव कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. कोई भी लैंग्वेज इसीलिए सॉल्व की जाती है, कोई भी, चाहे आप आर लीजिए, पाइथन लीजिए. हम क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज एट टाइम्स कैलकुलेशंस आर टू डिफ़िकल्ट एंड टू कॉम्प्लेक्स एंड डेटा सेट्स आर ह्यूज. तो उसको ईज आउट करने के लिए हम ये लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं. ठीक है. और यहीं पे शुरुआत हो जाती है. एक बार आप ये लैंग्वेज सीख सकते हैं, सीख ले आते हैं, तो फिर आप उसके बाद मशीन लर्निंग के अंदर चले जाते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सर्टन बेसिक कैलकुलेशंस. द इंटरफेस, यस, इंटरफेस जो है प्रियांशी वो इसलिए अलग है क्योंकि आप यहाँ से टूल से ग्लोबल ऑप्शंस पे जाइए और ग्लोबल ऑप्शंस पे जाके आप यहाँ पर अपीयरेंस पे चले जाइए. और अपीयरेंस पे इफ़ यू वांट माय अपीयरेंस then you can go to Vibrant Ink. I had So mine is the same, but I find something else. I have my skin is divided into 3 parts, unlike yours, which is of 4 parts. तो आप पेन लेआउट पे जाइए. पेन लेआउट पे आपको दिख जाएगा यहाँ सोर्स, एनवायरनमेंट, फाइल्स एंड कंसोल. दैट मीन्स वन ऑफ देम इज मिसिंग इन योर केस. और ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पर ये आपके मिनिमाइज्ड हों. ठीक है, इस तरीके से. So at times you want this to be on the complete page, at times you don't want it. तो ऐसा हो सकता है. ठीक है. And similarly ये minimize और maximize वाले options हैं. Okay. चलिए. So let's start with basic calculations. 3+4 कोई भी calculations कीजिए, addition कीजिए, multiplication कीजिए. Just try any of these. I'm not asking you to run these. Just try any of these. You will find the solution is given. For example, 2 raised to the power 5, you will get 32. Try anything, just try 2-3 things. चलो जल्दी आपको साथ करना है ना. एंटर करके कुछ नहीं होगा. पहली बात तो एंटर करके वो नीचे वाली लाइन में पहुंच जाएगा बस. तो एंटर करने का कोई पॉइंट नहीं है. अगर आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो आप हैशटैग करके यूज़ कीजिए. और अगर आपको कोड रन करना है तो आप कंट्रोल+एंटर कीजिए, या फिर आप इसको ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं. आई विल शो यू अनदर थिंग. आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे मुझे अगर ये सब कुछ रन करना है तो मैं ऐसे करूँगा और कंट्रोल+एंटर करूँगा तो मुझे वो पूरा दे देगा. ठीक है. जो आपका आउटपुट होगा वो आपका आउटपुट आपको यहाँ पर ये वाइट में दिखा रहा है कि ये आउटपुट है, और ये जो आपने बाकी रन किया है वो आपको ये ऑरेंज में दिखा रहा है. डन फोक्स, एनी प्रॉब्लम? ओके, लेट्स मूव ऑन टू असाइनिंग ऑफ वैल्यूज़. नाउ हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स असाइन करते हैं. तो लेट्स talk about variables. ठीक है. Variables are very important. Variables are something like names that you give to different things. And variables का फ़ायदा क्या होता है, कई बार आपको रिकॉल करना. इट्स जस्ट लाइक योर नेम, कि आपका नाम से शायद क्यों है. शायद जैसे मैं बोलूँगा तो सब पीपल कैन एसोसिएट कि अच्छा ये इंसान है. सिमिलरली आप जब भी कोई वेरिएबल को नाम दोगे तो वो वेरिएबल आप बाद में रिकॉल कर सकते हो एंड देन उसको यूज़ कर सकते हो. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग नंबर्स यू कैन स्टोर दीज नंबर्स, यू कैन स्टोर दीज वैल्यूज, यू कैन स्टोर names, you can store anything in terms of variables and then call that variable and utilize it for further mathematical operation or any kind of operation. So variables का वहाँ use आता है. Now how do you assign variables? You assign variables by say x. अगर मैं बोलूँ x में वेरिएबल असाइन करना चाह रहा हूँ तो उसको हम कैसे करते हैं. अच्छा, कभी भी किसी वेरिएबल को, अब नाउ दीज आर गुड प्रैक्टिसेस दैट आई एम टेलिंग यू, कभी भी कोई वेरिएबल आप कैपिटल लेटर में नहीं लिखोगे, बिकॉज आर एंड पाइथन बोथ आर केस सेंसिटिव. वो नहीं समझ पाएगा एक्स, वो एक्स को अलग लेगा, कैपिटल एक्स को, और छोटे एक्स को अलग लेगा. दूसरी चीज़, अगर आप कोई भी वेरिएबल लिख रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेरिएबल लिख रहे हो सिड, तो सिड और फिर मैं लिख रहा हूँ राठौर, तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो अगेन ये प्रॉब्लम है, कभी गैप नहीं आना चाहिए. अगर आपको गैप देना भी है तो आप उसकी जगह पे आप अंडरस्कोर दीजिए. सो देयरफॉर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जब द गुड प्रैक्टिसेस इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नेवर गिव एनी पर्टिकुलर वेरिएबल अ कैपिटलाइज्ड लेटर.
The second thing is never have gaps in between your whatever variable naming that you are doing, कोई गैप नहीं होना चाहिए. एंड यूजुअली अनदर गुड प्रैक्टिस इज किसी भी वेरिएबल को सीन मत देना, क्योंकि सी आई टेल यू, अभी आज की क्लास में आपको बताऊंगा सी का कुछ और मीनिंग होता है, कॉन्कैटिनेट मीनिंग होता है. बेसिकली काफ़ी सारे एलिमेंट्स को एक साथ लाने के लिए हम सी यूज़ करते हैं. देयरफॉर सी किसी भी वेरिएबल का नाम मत लिखना. ए, सपोज मैंने ए करा, अब वेरिएबल को असाइन कैसे करते हैं, आपका लेस देन वाला साइन एंड देन डैश. तो बेसिक एक तरीके का डैश हो गया, एक तरीके का एरो हो गया टुवर्ड्स ए एंड से 67. तो इसको अगर आप रन करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि एक वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर ए की. ठीक है, यहाँ पर आपको वैल्यूज़ में अलग अलग, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें स्टोर करी हुई थी, इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं. सो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास एक ए आ गया. सिमिलरली आपको एक बी निकाल लीजिए एंड उसको ए प्लस बी कर लीजिए, माइनस बी कर लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. ठीक है, सो दिस इज़ वाई वी यूज़ वेरिएबल्स. सो मैंने उसका पूरा आपको कंटेंट भी यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है. अगर आप एंटर करोगे तो, और प्लस दूसरी चीज़, जब आपने, कैन यू सी कि जब आपने ए को असाइन किया तो उसने कोई आउटपुट नहीं दिया. कैन यू सी कि यहाँ पर ये जो आउटपुट है वो ऑरेंज में है, विच इज़ जस्ट टेलिंग यू कि ए हैज़ बीन असाइंड दिस, बट उसने वैल्यू नहीं दी. अगर आपको वैल्यू प्रिंट करनी थी तो आपको ए को कॉल करना चाहिए था. दिस इज़ कॉल्ड कॉलिंग एंड दिस इज़ कॉल्ड एज असाइनिंग. सो दिस इज़ कॉल्ड एज असाइनिंग एंड ये आपका हो गया जब आपने इसको कॉल किया है. समझा, पहले किसी ने आपका नाम रखा, फिर उसने आपका नाम बुलाया. नाउ इफ़ यू रन दिस, कैन यू सी कि वो वाइट में आ गया आपके पास 67, क्योंकि नाउ आर नोज कि इट्स बीइंग कॉल्ड अपॉन. यहाँ तक क्लियर है फोक्स? इज एनीवन लैगिंग बिहाइंड? यस, नो फोक्स? ओके. नाउ सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया, माई एप्पल्स, एंड उसको वैल्यू 5 दे दी, एंड माई ऑरेंजेस उसको वैल्यू 12 दे दी. देन मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने उसको ऐड कर दिया. सो I've made two variables, my apples and my oranges. मैंने उन दोनों को एक साथ पहले रन किया. कैन यू सी यहाँ पर my apples, my oranges, यहाँ पर वैल्यूज़ ऑलरेडी आ गई हैं. देन मैंने एक नया वेरिएबल बनाया, my fruit, एंड my fruit जैसे ही मैंने बनाया तो उसने अपने आप ही उसको दोनों को वैल्यूज़ को ऐड करके अपने आप यहाँ पर my fruit की वैल्यू ले ली. इफ़ यू कॉल दिस अप देन यू विल गेट दी सम. तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट दिस इज़ द बेस विद विच यू स्टार्ट, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को नहीं आता है, तो इसलिए मैं आपको ये सारे बेसिक्स करा रहा हूँ. एंड देन यू कैन, देन हम इन सारी चीज़ों को, मैट्रिक्स हम काम कर सकते हैं, डेटा फ्रेम्स पे काम कर सकते हैं. वी कैन माय फ्रूट के आगे जो लिखा है माय एप्पल प्लस माय ऑरेंजेस. हाँ, ये तो ऑटोमेटिकली आ गया. ये नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं आया है, ये तो मैंने टाइप किया है ना. ये आपको टाइप करना पड़ेगा. टाइप करके देखो मत, सिर्फ टाइप करके देखो. अगर आप टाइप करके गलती कर रहे हो तो आप सीख रहे हो. टाइप करो इसको, एक माय कोई भी टाइप करने के बाद सर जो सर वैल्यू आएगी वो, अच्छा सर वो क्वेश्चन आंसर होगा. हाँ, उसका आंसर होगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, अभी हम ये कर रहे हैं, बाद में हम हो सकता है, अभी तो हम छोटे छोटे से वेरिएबल, बाद में मैट्रिक्स भी ऐड कर सकते हैं. बड़े बड़े कोई एक डेटा फ्रेम है, उसके साथ दूसरा डेटा फ्रेम ऐड कर सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन डिफरेंट थिंग्स, बट कंसेप्चुअली कंसेप्ट आइडिया होना चाहिए आपको. मल्टीप्लाई करके देख लो, डिवाइड करके देख लो. हैव वी रीच दिस स्टेज फोक्स? यहाँ तक? यस सर. Yes, Ayushi has raised an important question that you can use equal to, but again it's a good practice not to use equal to. Ayushi, आप equal to मत use कीजिए. It's better to use this particular symbol. यहाँ तक सबका clear folks? कहीं को किसी का bugs आया यहाँ तक? Okay, let's start basic data types in R. Now if we go on to basic data types in R, तो हमारे पास इंटीजर हो सकता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकता है, हमारे पास डबल्स हो सकता है, न्यूमेरिक, कई बार हमको न्यूमेरिक भी बोलते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं आपके पास, लॉजिकल वैल्यूज़ हो सकती हैं. तो वो सारी चीज़ें देखते हैं कि ये क्या आती हैं. और ये अगेन ये दीज आर दी ABCs ऑफ एनी लैंग्वेज. तो इंटीजर्स क्या होते हैं, किसी को आइडिया? सर लाइक सर 1 2 3 4. यस, एग्जैक्टली. तो अगर आप किसी को इंटीजर देना चाहते हो, तो अगर आप इस तरीके से रन करोगे
तो आपको दिखाई देगा कि ये जो 3L अगर आप लिख रहे हो तो उसको उसका मतलब जो सिस्टम है वो समझ रहा है कि इट इज़ एन इंटीजर। अगर आप a को कॉल करोगे आपको उसने आपको 3 वैल्यू दिया है, दैट मीन्स उसके आगे कोई डेसिमल नहीं है जब आपने l लगा दिया। और उसकी अगर आप क्लास देखोगे तो एक तरीका है उसकी क्लास पता करने का, तो आपको बता देगा कि इंटीजर है, या फिर आप टाइप ऑफ a देखोगे तो आपको बता देगा कि इंटीजर है। तो इंटीजर्स के अगर आपको प्योर इंटीजर्स यूज़ करने हैं तो आप उसके आगे l लगा सकते हो। वैसे l की कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट हम कभी l यूज़ करते नहीं हैं अनटिल अनलेस हमें उस फील्ड में जाना हो जहाँ पर हम सिर्फ इंटीजर्स के साथ ही डील कर रहे हैं। यूजुअली हमारे पास डेसिमल्स के अंदर नंबर होते हैं। अगर आप नॉर्मल किसी उसके अंदर चले जाओगे तो वो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने -5 नंबर दिया b को, ठीक है, तो वो b को भी यहाँ पर आपको देगा कि है तो वो न्यूमेरिक, ठीक है। अब वो न्यूमेरिक और इंटीजर में फ़र्क कहाँ आ गया कि न्यूमेरिक वैल्यू जो सकती है वो डेसिमल प्लेसेस के अंदर भी जा सकती है, बट इंटीजर डेसिमल प्लेसेस के अंदर नहीं जा रहा। और इसीलिए अगर आप उसको टाइप ऑफ b देखोगे तो वो टाइप ऑफ b आपको बताएगा कि वो डबल है, विच एसेंशली इन द लैंग्वेज ऑफ आवर बेसिकली मीन दैट इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्रेस दिस इन डेसिमल्स, ठीक है। अगर आप इसको 5.2 भी ले लोगे तो वो काम हो जाएगा आपका। नाउ रन दीज 3 लाइन्स, तो वो आपको न्यूमेरिक बता रहा है एंड 5 की b की वैल्यू को उसने वो लिया है, देखो 5 - 5.2। ट्राई करो इसको ना, पहले कॉम्प्लेक्स भी कर लो फिर उसके बाद टाइप करना। देन कॉम्प्लेक्स 2 + 5i, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया एक, एंड देन मैंने इनकी क्लास और टाइप चेक किया, आई गेट कॉम्प्लेक्स एंड टाइप ऑफ c इज़ कॉम्प्लेक्स। तो क्लास का जो आपका ये जो आपका सिंटैक्स है, इसको हम बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं सिंटैक्स। जो भी हम कोड टाइप कर रहे हैं ना उनको बोलते हैं सिंटैक्स। तो जो भी हमारा सिंटैक्स है आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं है फोक्स। एक और चीज़ है, कई लोग होते हैं कोडिंग लैंग्वेज जब सीखते हैं तो रटने की कोशिश करते हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि सिस्टम क्या कर रहा है। जैसे अगर हमें कोई भी चीज़ नहीं आती तो हम क्या करते हैं फोक्स? अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो क्या करते हो? कम ऑन, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो क्या करते हो लाइफ में? गूगल करते हो ना फोक्स, गूगल करते हो। तो जैसे हम गूगल करते हैं, आपको बिल्कुल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आइडिया हो तो अच्छी बात है, बट हमारे पास इतनी रिपोजिटरीज़ हैं, आप एक बार कोई चीज़ सर्च करोगे आपको स्टैक ओवरफ्लो पे, गीक फॉर गीक्स पे, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको पूरे के पूरे कोड्स मिल जाएंगे। आप क्यों प्रॉब्लम आ रही है वो आपको पूरा थ्रेड मिल जाएगा। कोरा की तरह एक ऐसे ही थ्रेड चलते हैं हमारे डेटा साइंस में। तो आप जो भी आपके दिमाग में प्रॉब्लम, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, 100% दुनिया में किसी ना किसी ने वो प्रॉब्लम फेस ज़रूर करी होगी और उसका सोल्यूशन भी 100% प्रोवाइड किया गया होगा। सो डोंट वरी अबाउट कि मुझे कि कोड रटना है, धीरे धीरे आप यूज़ करोगे आपको याद हो जाएंगे। तो डोंट वरी अबाउट द सिंटैक्स, यू लर्न विद टाइम। बट एक क्लास, एक ऐसा, जैसे क्लास मैंने आपको बताया कि एक इम्पॉर्टेंट तरीका है देखने का कि आपका किस तरीके का आपका वेरिएबल है, उसकी किस तरीके से उसकी बनावट है। सो उसके लिए हम क्लास देखते हैं। एंड देन माई न्यूमेरिक, मैंने आपको एक न्यूमेरिक है। ऐसे ही आप कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो। तो कैरेक्टर में आप क्या यूज़ करोगे? फॉर एग्जाम्पल आपने सर फॉर्मूला सर यही है ना सर, इसमें हमें सर टाइप करना है खाली। सर टाइप करके सर फॉर्मूले का नाम टाइप करना है और फिर उसके बाद सर मतलब सर उसको लगाना है। हाँ, बस लगाना है मतलब अरे जैसे आपने माइनस, अरे जैसे आपने माइनस हमारे रखा है। हाँ अच्छा माइनस न्यूमेरिक। हाँ और जैसे आपने सर कर सर वो तो कॉम्प्लेक्स। हाँ टाइप देखिए सर कॉम्प्लेक्स। हाँ, मैंने तो बस कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है। कोई भी नंबर आई के साथ लिखते हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है ना। तो सर फॉर्मूला कैसे याद करना है? फॉर्मूला थोड़ी ना, ये फॉर्मूला थोड़ी ना है, ये तो मैंने नंबर्स लिखे हैं बस आपको याद करने की। थोड़ा ये तो सिंपल नंबर है। इसको तो आप इसको +7i -7i कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो आई के साथ रिप्रेजेंट होते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो बस मैंने एक वेरिएबल बनाया है जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आगे जाके मैं सी वेरिएबल को किसी के साथ ऐड कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के साथ में। ओके सर। तो इसलिए सर लर्न क्या करना है? लर्निंग इसमें कुछ लर्न नहीं करना आपको। सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि डिफरेंट तरीके के, ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि डिफरेंट तरीके के डेटा टाइप्स कैसे कैसे होते हैं। इंटीजर एक डेटा टाइप होता है, एक डबल करके डेटा टाइप होता है, एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फिर एक कैरेक्टर्स होता है, और फिर एक बूलियन होता है, लॉजिकल कैरेक्टर होता है। तो मैं आपको ये 5 तरीके के डेटा टाइप्स बता रहा हूँ जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, जिस तरीके के आपके पास वेरिएबल्स मिलेंगे आपको, ठीक है।
ऐसे ही आप एक और वेरिएबल, इसके बाद आप खुद टाइप करके देखिएगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया है माई कैरेक्टर, उसका नाम रखा है यूनिवर्स, एंड उसके बाद आप इसको टाइप कीजिए क्लास और यूनिवर्स, क्लास माई कैरेक्टर, और ये आपको अपने आप ही प्रॉम्प्ट कर देगा बाय द वे जैसे आप टाइप कर रहे होंगे। देखो उसने बता दिया ना कि इट्स अ कैरेक्टर, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर नाउ आई वांट यू, अच्छा किसी भी चीज़ को अगर आपको कैरेक्टर बनाना है तो उसको आप डबल कोट्स के अंदर दोगे। कोई भी चीज़ डबल कोट्स में आ गई तो आर उसको नंबर के फॉर्म में नहीं पढ़ेगा, उसके लिए अगर बिना कोट्स के है तो वो नंबर है, बट अगर कहीं पर भी आपने कोट्स डाल दिए तो वो उसको नॉट एज अ नंबर बट उसको एज अ कैरेक्टर पढ़ेगा। तो अगर आपने आर को लिखा कोट्स में 2, तो व्हाट शुड बी दी क्लास ऑफ आर, व्हाट शुड बी दी क्लास ऑफ आर, इट शुड बी कैरेक्टर। ये देखो कैरेक्टर। अब यहाँ तक प्लीज़ रन कीजिए। एक आप कोई भी इंटीजर टाइप कीजिए, एक डबल टाइप कीजिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कैरेक्टर और एक इस तरीके का 2 का कैरेक्टर या 3 का कैरेक्टर। यहाँ तक आप प्लीज़ कीजिए, फिर मैं आपको लॉजिकल सिखाऊंगा एंड देन वी विल गेट डाउन टू वेक्टर्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? कहीं कोई प्रॉब्लम? डन folks? Anyone left behind? Okay, let's start with my logical. Now let's start with my logical. अब ये logical क्या है? इनको हम बोलते हैं boolean values. boolean values वो होती हैं जो या तो yes या no लेती हैं। boolean values का एक और तरीका होता है सोचने का या देखने का कि वो अल्टीमेटली सिस्टम उसे 1 या 0 के टर्म्स में समझ रहा होता है। यूजली 1 होता है ट्रू और फॉल्स होता है 0। इस तरीके से सिस्टम समझते हैं, कोई भी मशीन लर्निंग लैंग्वेज उसको इस तरीके से समझती है। तो कोई भी चीज़ येस या नो अगर हो तो येस और नो इस तरीके से देखी जाती है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। आई टेल यू इन टुमारोज़ लेक्चर कि कैसे ये यूज़फुल आता है लॉजिकल वैल्यूज़ और बूलियन वैल्यूज़ क्यों ज़्यादा यूज़ होती हैं। बट लेट्स स्टार्ट। मैंने एक लॉजिकल करके एक मैंने वो लिखा, क्या कहते हैं, वेरिएबल बनाया और उसको असाइन किया मैंने फॉल्स, ठीक है। एंड जब मैं आपको दिखाऊंगा माय लॉजिकल तो आपको दिखाई देगा ये फॉल्स है, और दूसरी चीज़ क्लास ऑफ माय लॉजिकल अगर आप टाइप करोगे तो आपको यह दिखाई देगा कि वो लॉजिकल है। लॉजिकल का मतलब ही यही होता है 0 1 0 1 0 1, वेयर 1 बेसिकली मीन्स ट्रू एंड 0 मीन्स फॉल्स। तो अगर आप इसको ट्रू लिखना चाहते हैं तो आप इसको कैपिटलाइज ट्रू कर सकते हैं या टी भी छोड़ सकते हैं। अगर आप टी भी कर देंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि वो ट्रू है। बट अगर आप ट्रू करना चाहते हैं तो और अगर ट्रू हो लिखना है आपको तो कैपिटलाइज पूरा ट्रू लिखना है आपको, ठीक है। फॉल्स लिखना है तो या तो सिर्फ एफ लिखिए या पूरा FALSE लिखिए ना। ऐसे आपने मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जस्ट ट्राई एट आफ्टर दिस सेशन जस्ट ट्राई अ कपल ऑफ थिंग्स, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ इनसाइट्स। देन लेट्स अंडरस्टैंड वेक्टर्स। अब वेक्टर्स जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि यूजुअली हर जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो वेक्टर्स के फॉर्म में होती हैं। तो वेक्टर्स होता है और आप कई वेक्टर्स को एक साथ मिला लेते हो तो वो मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। अब एक वेक्टर क्या होता है? इसमें सर वेगास क्या सर? वेगस जो है, वेगस मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। और उसके अंदर वो अब पहले तो ये देख लेते हैं। पहले देखो, पहले मैंने क्या करा है, पहले रन ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है वेगस और उसका नाम रखा है गो कि मुझे वेगस जाना है, ठीक है। और उसका क्लास लिखा है, मैंने देख लिया कि वो कैरेक्टर है। अब आपका ये वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर एक तरीके का कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो। इट्स लाइक अ बोल जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, बहुत डाइवर्स चीज़ें भी डाल सकते हो एक वेक्टर के अंदर। कुछ नंबर्स डाल दिए, कुछ नाम डाल दिए, कुछ कैरेक्टर डाल दिए। एक वेक्टर जो है वो एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ जोड़ सकते हो, फिर उसको बाद में यूज़ करने के लिए आता है। तो वेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और कई वेक्टर्स को मिला के कई बार हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं या फिर हम एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं, ठीक है। सो वेक्टर्स इन अनदर सेंस यू कैन अंडरस्टैंड कि इट कैन बी अ रो और इट कैन बी वन कॉलम, बट इन जनरल वो एक सिंगल फॉर्म है।
सो वेक्टर यहाँ पर जैसे हम इसमें हमने क्या किया, उसको ऊपर वाले को छोड़ दो, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने 3 नंबर्स को एक साथ लेना है, ठीक है, 1, 10 एंड 49, ठीक है, मे बी दिस इज हाइट, विड्थ एंड से लेंथ ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, और हमने उसको बोला ABC हमें रखना है। तो हम कैसे कोई भी वेक्टर कैसे बनाते हैं, कई सारी चीज़ों को एक साथ कैसे जोड़ते हैं, उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं C का, स्मॉल c का, जिसको हम बोलते हैं कंकैटिनेट, ठीक है। अब ये जो कंकैटिनेट वाला जो फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि किसी भी वेरिएबल को C के साथ मत स्टोर कीजिएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वो C है कि वो कंकैटिनेट वाला C है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक ABC करके एक वेरिएबल बनाया। ये तो हो गया, ये बेसिकली एक वेक्टर है जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, 1, 10 एंड 49। लेट्स मेक दिस वेक्टर। हमने ये वेक्टर बनाया, यहाँ पर आपको दिख गया यहाँ पर कि एक वेक्टर ABC करके, कैन यू सी, यहाँ पर एक ABC आ गया, और ABC के आगे वो क्या बता रहा है, ABC के आगे बता रहा है ये NUM। उसका मतलब क्या है कि ये एक नंबर वाला वेक्टर है जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, 1, 2। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं 10 वैल्यूज़ लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर मान लो से यहाँ पर 51 लिख देता हूँ, फिर 40, 67 लिख देता हूँ, 98 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर टोटल 5 नंबर है। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, तो कैन यू सी यहाँ पर इसने 1 to 6 कर दिया इसको, कि 1 से 6 मतलब टोटल 6 नंबर्स इसके अंदर आए हुए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर है, 6th नंबर है, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर नाम भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, मिक्स करके कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये जो वेक्टर है ABC, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दीज वाइड रेंज ऑफ नंबर्स, और इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकता है। तो आप जब आप इसको कॉल करोगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगा कि ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है। एंड अगर आप इसका क्लास देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लास भी दिख जाएगा कि ये एक न्यूमेरिक क्लास है, क्योंकि इसमें सारे नंबर्स हैं। बट अगर आप इसके अंदर एक ऐसा करके A ऐड कर देते, ठीक है, तो वो आपको बता देता, या इसने क्या किया, इसने अब जैसे ही आपने एक भी नॉन नंबर वाला कोई चीज़ डाल दी तो इन सभी को वो नॉन नंबर्स मानना शुरू कर देगा। तो अगर आप सिर्फ नंबर्स वाला बनाना चाह रहे हो तो सिर्फ नंबर्स वाला बनाओ, बट अगर आपने कहीं पर भी एक नॉन नंबर कोई एलिमेंट डाल दिया तो वो उन सबको, कैन यू सी नंबर्स। अब इसकी क्लास देखते हैं, देखो अब क्लास देखो इसकी, कैन यू सी इसने कैरेक्टर बना दी, जबकि यहाँ पर सारे नंबर्स थे, बट क्योंकि आपने एक नॉन नंबर डाल दिया, उस R ने उसको बोला कि बॉस ये तो कैरेक्टर है ही, बाकी सारे भी कैरेक्टर हैं, क्योंकि मैं नंबर और कैरेक्टर वाली चीज़ों को एक साथ नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। सो अगर आपको नंबर और कैरेक्टर एक साथ लेने हैं तो आप वेक्टर नहीं बनाते हो, तब आप डेटा फ्रेम बनाओगे, विच आई एक्सप्लेन यू मे बी टुडे और इन टुमारोज क्लास, ठीक है। बट जो आपके, अगर आप वेक्टर्स बना रहे हो तो या तो नंबर्स वाला वेक्टर बनाओ या आप कैरेक्टर्स वाला वेक्टर बनाओ। तो लेट मी डिलीट दिस एंड देन आई विल शो यू द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस अगेन। और मैं अभी आपको स्लाइसिंग वगैरह भी बताऊंगा, स्लाइसिंग एंड अगर आपको किसी भी चीज़ को कॉल करना है, फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि ABC के अंदर सपोज मैं कहता हूँ कि तीसरा एलिमेंट क्या है, तो मैं इस तरीके से भी कॉल कर सकता हूँ। तो कोई भी चीज़ अगर आपको कॉल करनी है कोई भी चीज़, तो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट दोगे। पहले तो यहाँ तक पहुँचना है, पहले तो एक आप वेक्टर बनाओ अपनी चॉइस का, उसको नाम दो, फिर उसके बाद उसकी क्लास देखो, फिर मैं आपको ये वाला कोड बताऊंगा कि व्हाट इज़ दिस, यहाँ तक करो, फिर मैं आपको इंडेक्सिंग सिखाऊंगा कि इंडेक्सिंग कैसे होती है। और इंडेक्सिंग बाय द वे R और पाइथन में थोड़ी डिफरेंट होती है। इंडेक्सिंग पाइथन में 0 से शुरू होती है और R के अंदर 1 से शुरू होती है। आई जस्ट टीच यू व्हाट इज इंडेक्सिंग। हुआ यहाँ तक रन फोक्स, एवरीवन? ग्रेट ग्रेट। नाउ अब ये इंडेक्सिंग क्या है, अब यहाँ पर हमारे ABC के अंदर हमारे पास 6 एलिमेंट हैं। ये जो फर्स्ट नंबर है ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा एलिमेंट है, ये पांचवा एलिमेंट है और ये छठा एलिमेंट है। सपोज मुझे पूरा नंबर नहीं चाहिए, मुझे देखना है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर व्हाट इज़ दी फिफ्थ, मुझे सिर्फ फिफ्थ वाले से काम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, याद रखना इंडेक्सिंग करने के लिए कोई चीज़, बड़ी चीज़ में से कोई छोटी चीज़ उठाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब आप कॉन्कैटिनेट यूज़ कर रहे हो तो आप राउंडेड ब्रैकेट्स यूज़ करोगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि आप इंडेक्स करने वाले हो। तो
इंडेक्स करोगे तो इस तरीके से करोगे. सो इफ़ यू इंडेक्स से मैं चाहता हूँ कि मैं 5th वैल्यू को इंडेक्स करके देखना चाहता हूँ. सो वंस यू रन दिस आपको 5th वैल्यू मिल जाएगी. इफ़ यू वांट कि मुझे सेकंड से लेके 5th तक सारी मिल जाए तो आप इस तरीके से रन कर सकते हो. तो इससे अगर आप रन करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा. आपको सेकंड मिल गया, थर्ड मिल गया, फोर्थ मिल गया और 5th मिल गया. दोनों इंक्लूसिव हैं सेकंड और 5th को लेके. क्लियर. अगर आप ये सेम इंडेक्सिंग पाइथन के अंदर करोगे तो ये 5th जो है वो इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है. तो थोड़ा सा वेरिएशन रहता है. इसलिए कई बार मुझे भी जब मैं वर्क कर रहा होता हूँ तो कई बार मुझे भी थोड़ा सा वो लगता है, क्योंकि मेरी मेन ट्रेनिंग पाइथन पे हुई है. आर इज़ एन एडिशनल लैंग्वेज फॉर मी. ठीक है. सो एंड बाय द वे, इज देयर एनीवन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर जो आज इस बार नए बच्चे हैं? एनीवन इन द क्लास फ्रॉम फर्स्ट ईयर? ओके. सो फर्स्ट ईयर में यू हैव वेरी गुड कोर्सेज. अगर आपके क्योंकि आपका कॉलेज नोडल वो भी है, हब भी है. सो इफ समवन ऑफर्स पाइथन का कोर्स विद मशीन लर्निंग, दैट विल बी अ रियली गुड कोर्स टू टेक. तो उसके अंदर आपको प्राइमरली पाइथन पे काम करते हैं. एंड अगेन सिमिलर लैंग्वेज है. देन उसके बाद एक कैरेक्टर वेक्टर बनाओ और कैरेक्टर वेक्टर के साथ सेम चीज़ ट्राई करो. ऐसे ही एक जेंडर, ऐसी एक, हाँ चलो कैरेक्टर वेक्टर बनाओ. ट्राई अ कैरेक्टर वेक्टर. कम ऑन फोक्स, जल्दी करना है हमें. वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. हो गया सबका कैरेक्टर वेक्टर? इफ यू रन दिस. इंडेक्सिंग बेटा ये है कि इंडेक्सिंग अगर मुझे कोई चीज़ उठानी है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि सेकंड वैल्यू क्या है या थर्ड वैल्यू क्या है, मुझे वो चीज़ें देखनी है. तो मैं इंडेक्सिंग करने के लिए क्या करता हूँ. सपोज मुझे सिर्फ ए बी सी था ना, हाँ ABC का मुझे सिर्फ 4th वैल्यू चाहिए कि इस वेक्टर के अंदर व्हाट इज़ द 4th एलिमेंट. ठीक है. मैं उसको रिकॉल करना, मैं सिर्फ 4th एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ किसी और नंबर के साथ में. तो 4th नंबर मैं बाहर कैसे निकालूंगा. ठीक है. उसको बाहर निकालने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करता हूँ और उसको रन करूँगा तो मुझे 4th वैल्यू मिल जाएगी. ये 4th आपको देखा, ये 4th इंडेक्स वैल्यू पे पड़ा हुआ है. फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे ये है, सेकंड इंडेक्स वैल्यू ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है. तो 4th आपको वैल्यू मिल गई यहाँ पर. समझ में आया इंडेक्सिंग? किसका क्वेश्चन था ये? देन नेक्स्ट इज कैरेक्टर वेक्टर. आप कैरेक्टर वेक्टर सिमिलरली आप ऐसे ही कैरेक्टर वेक्टर रन कीजिए और आपके पास ये कैरेक्टर्स आ गए A, B and C एंड यू कैन सी द क्लास ऑफ कैरेक्टर वेक्टर एज वेल. अगर आप क्लास देखना चाहते हैं तो आप क्लास देख लीजिए. कैरेक्टर वेक्टर आपको दिख जाएगा कि कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर. सिमिलरली आप ऐसे कर लीजिए. यहाँ पर मैंने एक X करके एक वो बनाई है और एक जेंडर करके. अब जेंडर में क्या है, मैंने 5 स्टूडेंट्स लिए हैं जिनके मैंने एजेस लिखी हैं और जेंडर लिखा है. तो ये 5 नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं और 5 नंबर ये लिखे हैं. तो इस तरीके से मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं. बेसिकली ये 2 वेक्टर्स हैं. ठीक है. और उसके बाद अगर मैं इसकी समरी देखना चाहता हूँ तो किसी भी वेक्टर, अगर वो न्यूमेरिक वेक्टर है तो उसकी आप समरी आपको कैसे मिलेगी. तो जैसे आप समरी टाइप करोगे, समरी के बाद आपको वो दिखाएगा कि इस पर्टिकुलर जो भी आपके पास वेक्टर है उसका मिनिमम क्या है. ये आपको दिख रहा है मिनिमम. फिर आपको दिखाई देगा सो आपको यहाँ दिखाई देगा कि उसका मिनिमम क्या है, उसका फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है, उसका मीडियन क्या है, मीन क्या है, थर्ड क्वार्टाइल क्या है और मैक्स क्या है. आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई है. तो समरी जो है काफ़ी यूज़फुल होता है. जब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे, मैं आपको डेटा फ्रेम्स दूंगा. तो डेटा फ्रेम के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास एक पूरा का पूरा सबके नाम लिखे हुए हैं. फॉर एग्जांपल एक डेटा फ्रेम है जिसमें मैंने आपके क्लास में 50 जने हैं, उन सबके नाम हैं. जो फर्स्ट कॉलम है वो नेम्स का है. सेकंड कॉलम है कि MME में आपके कितने मार्क्स आए, माइक्रो में कितने मार्क्स आए. थर्ड कॉलम में है मैक्रो में कितने मार्क्स आए. ठीक है. फिर कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक इशूज़ में कितने मार्क्स आए. तो इस तरीके से सब्जेक्ट्स लिख रखे हैं और मार्क्स लिख रखे हैं. तो अगेन आपको जैसे मार्क्स वाले कॉलम में आपको पता चल जाएगा कि सपोज MME में मिनिमम मार्क्स कितने हैं, मीडियन मार्क्स कितने हैं, मीन मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं. तो इस तरीके से हम कई बार समरी को यूज़ करते हैं. समरी से हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. समरी अगर आप जेंडर की निकालोगे, समरी जेंडर की टाइप करके देखो क्या मिलते हैं आपको. तो वो आपको मॉडल वैल्यूज़ देगा. वो आपको देगा कि इसके अंदर कितने नंबर्स दे रखे हैं. ठीक है. ये मैं आपको डेटा फ्रेम में भी दिखाऊंगा. कई बार फॉर एग्जांपल
जब आप समरी निकालोगे नेम्स के वेक्टर की, क्लास में 50 जने हैं तो लेंथ क्या लिखी हुई आएगी, अगर क्लास में 50, अगर मैं एक एक्सेल शीट बनाऊं जिसमें 50 नेम्स है तो लेंथ क्या लिखी हुई आएगी उस कॉलम की, 50 आएगी। क्लास क्या बताएगा मुझे, क्लास भी बताएगा कि वो कैरेक्टर हैं क्योंकि सबके नाम ही होंगे, और मोड भी कैरेक्टर ही हैं क्योंकि नाम यूजुअली चेंज नहीं हो रहे होंगे, तो मॉडल वैल्यू भी कैरेक्टर ही रहेगी। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। बट उससे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर आपके रिपीटिंग वैल्यूज़ हैं तो आप टेबल बना सकते हो। जब आप टेबल जेंडर करोगे तो आपको बताएगा यहाँ पर कि इसके अंदर 2 तो फीमेल हैं और 3 मेल्स हैं। तो ये एम मैंने खुद ही लिखा था, तो वो बता देगा आपको कि 2 फीमेल्स हैं 3 मेल्स हैं, आपको एक टेबल बना के दे देगा। क्लियर? यहाँ तक फोक्स, टाइप इन योर कोड्स। हो गया सबका? कोई पीछे तो नहीं रह रहा? सिमिलरली ऐसे आप बूलियन वेक्टर भी बना सकते हो, ट्रू फॉल्स का। ठीक है, अब हम एक गेम खेलते हैं। ठीक है, हम गेम क्या खेलेंगे? आप लोगों में से किसको पता है पोकर खेलनी आती है? रेज हैंड्स। पता है पोकर एक गेम है? यस, नो फोक्स, पोकर ओनली 1 पर्सन नोज व्हाट पोकर इज। तो आज की क्लास के बाद आर जैसी आप सीख लोगे तो सर्च अबाउट पोकर। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। इनफैक्ट बहुत सारे पोकर के कॉम्पिटिशन्स होते हैं एंड इट्स बेस्ड ऑन कार्ड्स। ठीक है, अगर आपने कभी कोई जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी हो तो जेम्स बॉन्ड भी पोकर खेलता है। ठीक है, एंड मतलब इट्स नॉट ओनली, जैसे हम यूजुअली क्या खेलते हैं, अगर आपने पत्ते खेले हो तो 3 पत्ती खेलते हैं। 3 पत्ती जो होता है वो मोस्टली गेम ऑफ लक होता है। बट पोकर जो है इट्स अ गेम ऑफ स्किल, इट्स अ गेम ऑफ इंटिमिडेशन। ठीक है, आप इंटिमिडेट कर सकते हो दूसरे, तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट, मतलब इसमें दिमाग लगता है। कार्ड्स की गेम विद अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी इन इट। ठीक है, आप कभी किसी पोकर टेबल पे देखोगे लोगों को, तो पोकर टेबल पे लोग काला चश्मा पहन के बैठे हुए होंगे सो दैट पीपल डोंट रीड देयर आइज। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। अब सिमिलरली तो सपोज हम वेगस में गए हैं। वेगस सबको पता है किस लिए नोन है, किस लिए दुनिया में जाना जाता है? किसके लिए? मुझे सुनाई नहीं दिया। क्लब के लिए। क्लब्स के लिए है। क्लब्स के लिए नहीं, बट क्लब्स में क्या होता है वहाँ पर? क्लब नहीं, गैम्बलिंग। व्हाट हैपेंस, इट्स कॉल्ड एज द सिन सिटी। ठीक है, पाप करने की सिटी। जो वेगस में होता है वो वेगस में रहता है। व्हाट हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस। ठीक है, तो पोकर जो है आप मान लीजिए अमीर लोगों का थाईलैंड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर गए, सपोज वेगस के अंदर गए, तो वहाँ पर कसिनोज, बहुत सारे कसिनोज मिलेंगे और हमने 2 गेम्स खेली। एक हमने खेला पोकर और एक खेला हमने रूले। रूले क्या होता है? रशियन रूले बोलते हैं। रशियन रूले, अगर मैं आपको रूले करके एक गेम दिखाता हूँ क्या होती है। शायद से आपने देखोगे तो आपको शायद से समझ में आ जाएगा रूले कैसी दिखती है। ऐसी गेम देखी आपने? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रशियन रूले। तो अब हमने क्या करा, हम गए वेगस और वेगस में जाके हमने ये गेम्स खेली और फिर ये हमारे पास पोकर की और रूले की हमारे पास विनिंग्स हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट डे पोकर हमने खेला, हमारे पास $140 मिले। तो हम बेसिकली, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हम कैसे यूज़ करते हैं। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, फिर मैं आपको इसका पूरा एक डेटा बना के दिखाऊंगा। तो हमारे पास हम मंडे गए, मंडे मुझे $140 मिले। मैं बहुत इनकरेज हुआ। मैं ट्यूसडे गया, ट्यूसडे में $50 हार के आ गया। फिर मैं वेडनेसडे गया, मुझे $20 मिल गए। फिर मैं थर्सडे गया, मुझे $120 का लॉस हो गया और फ्राइडे मुझे $240 मिल गए। फिर ऐसे ही मैं सेम दिन 2 गेम्स खेलता हूँ। मैं रूले खेलने भी जाता हूँ और रूले खेलते हुए मुझे ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से 2 वेक्टर्स बनाओ जिनमें 5 आइटम होनी चाहिए और कोई आर्बिट्री नंबर्स मान लो। ठीक है, तो वो वेक्टर्स बना के दिखाओ मुझे। जल्दी से वेक्टर्स बनाओ, ये कोई भी 5 नंबर्स का। ध्यान रखना, वेक्टर बनाने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ें आप ऐड करोगे तो उसके लिए आपको C यूज़ करना है, कंकैटिनेट का फंक्शन यूज़ करना है। यू कैन मेक द सेम और यू कैन मेक एनी वैल्यूज़ दैट यू वांट, कुछ भी आप कर लीजिए। हो गया फोक्स? आई एम गोइंग टू जस्ट डायरेक्टली रन दीज 2। मैंने इसीलिए कोड लिखे हुए हैं पहले ही कि ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पोकर वेक्टर भी रन करोगे तो आपको मिल जाएगा पोकर वेक्टर। आपको पोकर वेक्टर की ये 5 वैल्यूज़ मिल गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे असाइन करना है। मुझे पता भी तो होना चाहिए। अब अगर आप ये देखोगे नंबर्स तो आपको पता चल रहा है कि कोई कहीं लिखा हुआ है कि ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, वेडनेसडे। आपको तो पता, याद करना पड़ेगा ये चीज़। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि हर एक एलिमेंट जो है इसके अंदर, इसके ऊपर नाम भी आ जाए कि ये मंडे का है,
ये ट्यूसडे का है, ये वेडनेसडे का है, ये थर्सडे का है। तो व्हाट यू विल डू इज, आप पोकर वेक्टर के आगे लिखोगे, पोकर वेक्टर जो है उसके आगे लिखोगे कि नेम्स असाइन करने हैं। यू आर असाइनिंग बेसिकली डेज और डेज एज नेम्स ऑफ ईच ऑफ दीज एलिमेंट। मतलब आप ये 140 को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि वो मंडे है, -50 को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि वो ट्यूसडे के लिए है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नेम्स, फिर उसके बाद आप किसका नाम देना चाहते हो। ठीक है, आप देना चाहते हो पोकर वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको आप नाम देना चाहते हो, तो उसका आप नाम आप बोलोगे कि ये मुझे पोकर वेक्टर को नाम देने हैं, एंड देन असाइन दोज नेम्स। असाइन कैसे करोगे, अगेन सी और 5 आपके डेज ऑफ द वीक। ट्राई टू डू दिस। वंस यू डू दिस यू विल सी कि यहाँ तो ये रन हो गया, बट आपके पास आया नहीं। अब आप पोकर वेक्टर रन करके देखो। अब आप पोकर वेक्टर रन करके देखो। कैन यू सी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इजीली लिखा हुआ आ गया। कैन यू डू इट फॉर रूले वेक्टर एज वेल? ट्राई डूइंग इट फॉर रूले। अगर पोकर हो गया तो कोई एरर आ रहा तो बताना। पोकर वेक्टर से पहले नेम्स था ना, पहले नेम्स लगाओगे ना, नाम दे रहे हो ना, तो नेम्स आपको लिखना पड़ेगा। नेम्स और नेम किसका दे रहे हो, किसी वेक्टर का ना, किसी वेक्टर के एलिमेंट्स के नाम दे रहे हो ना, तो किस वेक्टर है वो, पोकर वेक्टर है, तो पोकर वेक्टर टाइप करना पड़ेगा। डन फोक्स? रूले वेक्टर को भी कर दिया आपने सेम। बट आपको इफ़ यू आर स्मार्ट नाफ तो आपको ये इसको करने की ज़रूरत नहीं थी। पता है क्यों? आपको क्या करना चाहिए था, आपको एक नया वेक्टर बनाना चाहिए था। अब शॉर्टकट, अभी मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एक वेक्टर बना, पहले मुझे नेम्स टाइप करने पड़े इतने सारे, फिर मुझे कॉपी पेस्ट करके ये पूरा करना पड़ा। ठीक है, उसकी बजाय मैं क्या कर सकता था, मैं एक नया वेक्टर बनाता। ठीक है, मैं सपोज एक नया वेक्टर मैंने यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ डेज, और मैंने उसका नाम दिया सी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ठीक है, मैं डेज करके एक नया वेक्टर बना देता। ठीक है, और उसके बाद दोनों के दोनों वेक्टर्स को बोलता, इनके नेम्स में जब मैंने नेम्स लिखा तो उसको बोलता कि ये डेज वेक्टर से उठा ले, डेज वेक्टर के अंदर नाम ही तो लिखे हुए हैं। समझ में आया व्हाट आई हैव डन? इंस्टेड ऑफ रनिंग दोज 2 बिग कमांड्स, मैंने एक नया वेक्टर ही बना दिया जिसके अंदर डेज असाइंड थे, और फिर इसी वेक्टर को इसके नेम्स, जब मैंने नेम्स अंडरस्कोर पोकर वेक्टर करा, नेम्स पोकर वेक्टर किया, तो मैंने उसको बोल दिया कि बॉस डेज वेक्टर के अंदर, यहाँ पर डेज वेक्टर है उसके अंदर ऑलरेडी ये नाम डले हुए हैं, इसको मैं डेज कर देता हूँ, डेज, और इसको भी मैं डेज कर देता हूँ। नाउ इफ़ आई रन पोकर वेक्टर, कि उससे मेरी लाइफ कितनी ईजी हो गई। मुझे 2 बार नहीं कोड करना पड़ा, मैंने एक ही बार एक नया नाम का ही वेक्टर रखा था और उसको रीअसाइन कर दिया। ये समझ में आया सबको व्हाट आई हैव डन? नहीं आया? अच्छा, और किसको नहीं समझ में आया? किस किस को समझ में आ गया ये? हाँ उत्कर्ष पूछो। अच्छा उत्कर्ष, ओके, ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ क्या हुआ यहाँ पर मैंने देखो 2 बार पहले नेम्स का एक पूरा वेक्टर पोकर वेक्टर बनाया, फिर उसके बाद फिर मैंने रूले वेक्टर के नेम्स पूरे सारे सेट करे, तो मुझे कितने सारे नाम फिर से लिखने पड़ गए। मुझे एसेंशली ये पूरी लाइन 2 बार लिखनी पड़ी। समझ में आया? उसकी बजाय मैंने क्या किया, मैंने एक ही वेक्टर बनाया जिसके अंदर ये सारे नाम थे। ठीक है, एक ही वेक्टर बनाया जिसके अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लिखा हुआ था, और फिर जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा था, मैंने यहाँ पर कहा था नेम्स पोकर वेक्टर, और फिर मैंने मंडे ट्यूसडे लिखा था। मैंने इंस्टेड उसके लिए कहा कि बॉस नेम्स पोकर वेक्टर, मुझे पोकर वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम रखने हैं, और नाम कौन से रखने हैं, जो डेज के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि डेज का मैं ऑलरेडी वेक्टर बना चुका हूँ। तो डेज के अंदर नाम पड़े हैं, वही नाम असाइन करके उठा के उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उठा के उसको पोकर वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर डाल दो, मतलब उसको असाइन कर दो। सिमिलरली रूले वेक्टर के लिए कर दो। वैसा अगर आप करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पर इस तरीके से आपको मिल जाएगा। समझ में आया? यस, नो फोक्स? अब हम वेक्टर्स जो हैं, अगेन वेक्टर्स जो हैं बहुत क्रिटिकल, मैं आपको बता रहा था कि वेक्टर्स बहुत क्रिटिकल होते हैं। वेक्टर्स, मैट्रिसेस एंड डेटा फ्रेम्स, यही 3 चीज़ें हैं अल्टीमेटली। पूरा मशीन लर्निंग, पूरा एआई जो है बेसिकली इन्हीं के सराउंड घूमता रहता है। सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है, थोड़ा मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहती है, बट दीज आर दी फंडामेंटल्स।
अब आप वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हो, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो. सपोज मैंने ये दो वेक्टर्स लिए ए और बी, उनको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, टोटल वेक्टर ए और मैं उनको और उसका नाम रख रहा हूँ ए बी का, तो वो ऐड करके मुझे दे देगा. बट सपोज मैंने यहाँ पर एक वैल्यू और ऐड कर दी 4, ठीक है. और अब मैंने क्या किया, अब मैं टोटल वेक्टर अगर देखता हूँ, कैन यू सी व्हाट हैज़ हैपेंड हियर. पहले तो 3 करके करो, फिर आपको समझाऊंगा मैं ये टोटल वेक्टर क्या हुआ. पहले तो ये वाला ही समझो. 2 वेक्टर्स ऐड करके देखो, और 2 वेक्टर्स इक्वल लेंथ के ऐड करना. अभी मैंने ये 4th जो एलिमेंट करा है उसको भूल जाओ. पहले 2 वेक्टर ऐड करके देखो. जस्ट ट्राई टू ऐड 2 वेक्टर्स, देन आई विल टीच यू व्हाट हैपन्स इफ द वेक्टर्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इक्वल लेंथ वेक्टर्स है. हो गया वेक्टर्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आपको करना कर लो. एडिशन कर लो, क्योंकि I'll teach you something, फिर वो सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब में वैलिड होती है. यस नो फोक्स, यहाँ तक पहुँच गए? प्लीज़ रेज योर. ओके. देन सपोज अब मैंने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया इसके अंदर, से 2, ठीक है. अब जब मैंने एलिमेंट ऐड कर दिया तो ये अनइक्वल वेक्टर्स हो गए. तो ये 1 को तो 4 के साथ ऐड कर रहा था, 2 को 5 के साथ ऐड कर रहा था. देख रहे हो ये टोटल वेक्टर का सम देख रहे हो. ये 4 + 1, 5 + 2 एंड 6 + 3 है. अब ये जो 2 है, जो आपने एक अनइक्वल जो है एक नई चीज़ ऐड कर दी, ये 2 को किसके साथ ऐड करेगा? वन ऑप्शन है 6, द अदर कुछ और. एक ऑप्शन है कि ऐसे ही 2 रख देगा, 0 में ऐड करे 2 रख देगा, दैट मीन्स 0 में ऐड करेगा, दैट मीन्स, ठीक है. बट ऐसा नहीं होगा. लेट्स सी दिस. मैं वापस ये पूरा रन करता हूँ. कैन यू सी कि यहाँ पर नंबर आ गया है 6. अब वो 6 क्यों आया है? इसने इस 2 को इस 4 के साथ ऐड कर दिया है. तो जितने भी आप एलिमेंट्स ऐड करते रहोगे वो यहाँ पर ही ऐड होते रहेंगे. देखो यहाँ पर आप 5 कर दो, फिर रन करो. कैन यू सी वो क्या कर रहा है? वो आपका इस वाले एलिमेंट को, जस्ट सेकेंड आर्शी, इस वाले एलिमेंट को इसके साथ ऐड कर रहा है, फिर जो उसके बाद वाला एलिमेंट है वो उसको इसके साथ ऐड कर रहा है. तो इस तरीके से वो ऐड करता हुआ जाएगा. अब वो यहाँ से नेक्स्ट वेक्टर से वापस शुरुआत करेगा और सब्सिक्वेंटली ऐड करता रहेगा. यस अर्शी, इसमें कुछ वैल्यूज ऐड, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन है. हाँ, सोचो, खुद सोच के बताओ कि कोई आंसर जानता है इसका, कैसे ऐड करोगे? मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, बट इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ फाइन ट्यूनिंग. यस कनिष्का, बताओ कैसे करोगे? ब्यूटीफुल. इंडेक्सिंग यूज करके. अगर मुझे सिर्फ इस 3 को इस 6 के साथ ऐड करना है, या इस 3 को इस 4 के साथ ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा? देखो, ये पहली बात तो मैंने गलती करी है कि मैंने ए वेक्टर जो है कैपिटलाइज लिया है, बट कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ. मैंने ए वेक्टर लिया. अब ए वेक्टर का मुझे 3 वाला जो एलिमेंट है वो यूज़ करना है. ये जो 3rd एलिमेंट है ना, ये यूज़ करना है. तो व्हाट शुड आई गिव? कमांड क्या दूँ मैं? क्या ब्रैकेट में 3. कौन सा ब्रैकेट में 3? स्क्वायर ब्रैकेट में 3. तो स्क्वायर ब्रैकेट में मैं 3 दूंगा क्योंकि वो 3rd एलिमेंट उठाएगा. और मैं बी वेक्टर के 5 के साथ ऐड करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ मैं? प्लस बी वेक्टर स्क्वायर में क्या डालूँ? अब 2 डालूँ कि 5 डालूँ? 2 डालूंगा, क्योंकि ये सेकंड एलिमेंट है. तो ये सेकंड एलिमेंट है, तो अगर मैं ऐसे करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8. समझ में आया? दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन. यस उत्कर्ष. नहीं, 3 यूनिट्स नहीं है, अब तो 5 यूनिट्स हो गए ना. कि मतलब ए वेक्टर में 3 यूनिट्स हैं. ठीक है, ज़्यादा है. हाँ, करके देखो. अरे ट्राई करने में क्या जा रहा है? करके देखो, आप पता चलेगा ना क्या होगा. वो उल्टा करना शुरू कर देगा उसको. सपोज तुमने ये लिया और यहाँ पर लिया 2, तुमने इन दोनों को रन कर दिया और फिर उसके बाद टोटल वेक्टर को फिर से रन किया. तो देखो क्या करा उसने इस 2 को किसके साथ ऐड किया उत्कर्ष? ए वेक्टर के फर्स्ट वाले के साथ. फ़र्क तो कोई पड़ता ही नहीं ना. उसको क्या फ़र्क पड़ता है? वो ए कुछ हो बी कुछ हो, उसमें प्लेसिंग तो कहीं भी कुछ भी कर दोगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? लॉजिक तो सेम ही है. क्लियर फोक्स यहाँ तक? प्लीज़ अगर नहीं क्लियर है तो पूछ लो. दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज यू विल यूज़ दिस अ लॉट.
जब आप एनालिटिक्स के अंदर जाओ, अगर आप किसी को एनालिटिक्स का शौक है, मैं आपको कल या परसों की क्लास में एक लाइव डेटा सेट दिखाऊंगा, आपको ऊबर कंपनी का डेटा सेट दिखाऊंगा और उस पर हम वर्क करेंगे। तो हो सकता है मैं उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं कि कौन सी चीज़ें बेटर है, मतलब क्या स्ट्रैटेजी कंपनी को लेनी चाहिए। एक आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा, डेटा साइंस में कई चीज़ें डेटा ड्रिवन होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताऊंगा कि दुनिया में एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला था कि बियर्स और डाइपर सबसे ज़्यादा बिकते हैं एक साथ। कैन समवन गिव द रीज़न कि बियर और डाइपर तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक साथ क्यों बिकती है? कॉम्बिनेशन में बिकता था। तो लोगों ने स्टोर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, उनको साथ में रखना शुरू कर दिया। तो व्हाई डू यू थिंक दैट हैपन्स? कोई क्वेश्चन सोच के बता सकता है कि बियर और डाइपर तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। सपोज आपका जैसे स्टोर्स होते हैं ना, जैसे 24/7 के स्टोर्स होते हैं, तो आप देख रहे हो कि दो चीज़ें बिल्स जब प्रेजेंट हो रहे हैं तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा साइमल्टेनियसली बिक रही हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बट हाउ कैन बियर्स एंड डाइपर्स बी कॉम्प्लीमेंट्री, और स्पेशली वीकेंड्स पे? कैन समवन गिव मी द रीज़न? सोच के, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये है डेटा साइंस का मज़ा। आपको प्योर डेटा से एनालिटिक्स मिलेगा कि क्या हो सकता है उसका रीज़न, और उसमें आपको सोचने में मज़ा आएगा। नहीं, रीज़न ये है कि वीकेंड्स पे जो हस्बैंड्स हैं वो डाइपर लेने जाते हैं यूजली, और जब वो डाइपर लेने जाते हैं तो वो बियर भी उठा के ले आते हैं। ठीक है, इट्स द सेम रीज़न व्हेन यू गो टू अ 24/7 शॉप। आपने देखा है कि वहाँ काउंटर के ऊपर चॉकलेट्स बहुत सारी रखी हुई होती हैं, च्युइंगम्स रखी होती हैं, और बच्चों के वो जो खाने की, अगर आपने बचपन में वो किड्स वाली वो जो चॉकलेट की वो जो होती थी ना, छोटी छोटी वो बॉल टाइप, एग टाइप, देखा आपने कभी खाया है वो वाला एग्स वाला जो होता है? तो वो हमेशा किंडर जॉय, ऐसी आई हैव अ 2-year-old सन, तो मुझे इसीलिए ये किंडर जॉय से बड़ा डर लगता है। तो ये जो किंडर जॉय है ये उसी वहीं पे पड़ा रहता है। वो क्यों पड़ा रहता है? बस बच्चा आए तो वो हाथ मार ले और वो रो दे वहीं पे, बैठ जाए कि ये तो मुझे लेके ही जाना है। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज डेटा इज़ वेरी पावरफुल। अगर आप डेटा के साथ एक बार डेटा को एनालाइज करना शुरू कर दोगे, इट इज़ अ सुपर पावर दैट यू हैव। ठीक है, तो एंड गिव्स यू गुड इंसाइट्स। मतलब द रीज़न वेयर आई हैव रीच्ड इन जनरल इट्स बिकॉज ऑफ डेटा साइंस, कि उसकी वजह से एनालिटिकल स्किल जो है वो बेटर हो जाती है। ठीक है, स्पेशली एडमिशन, जैसे एडमिशन्स करने हैं, एडमिशन्स के अंदर एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी अगर आपको एक्सेल और आर और कोई भी एक लैंग्वेज आती है तो इन जनरल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि आप बहुत शार्प हो जाओगे अगर आपके डेटा स्किल्स अच्छे होंगे। चलो, वी विल टॉक अबाउट दैट इन आई मीन एक डेटा सेट के बारे में मैं आपको ऊबर के डेटा सेट के बारे में कल बताऊंगा। नाउ सिमिलरली हम ऐसे ही डेली, जैसे हमारे पास पोकर और डेली वाला था, रूले था, हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल्स आ गया। ये देखो, ये क्या हुआ, टोटल ऑफ की मंडे को टोटल मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, ट्यूसडे को कितना लॉस हुआ, वेडनेसडे को कितना प्रॉफिट हुआ, थर्सडे को कितना लॉस हुआ, फ्राइडे को कितना प्रॉफिट हुआ। और जब मैं टोटल करूंगा पोकर का तो मुझे पता चल जाएगा। अगर मैं सम करना चाहता हूँ, अब सम करना चाहता हूँ मैं, तो अब एलिमेंट्स को, आप सारे एलिमेंट्स को जोड़ना चाहते हो और पूरे न्यूमेरिक वेक्टर है, तो आप सम कैसे करते हो? अगर आपको करना है, जैसे पहले अगर आपको मीन निकालना है तो मीन के लिए मीन टाइप करोगे और कहोगी पोकर वेक्टर। ठीक है, तो आपको उसका मीन मिल जाएगा कि 46 मीन है। अगर आप उसका सम करना चाहते हो तो आप सम मिल जाएगा, आपको पोकर वेक्टर, आपको सम मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं सम कर रहा हूँ पोकर वेक्टर का, और उसका प्रॉफिट जो है टोटल ना, वो मैं टोटल पोकर के नाम से मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो दिस इज़ माई टोटल $230 मुझे मिले यूजिंग पोकर। और रूले के केस में मुझे कुछ लॉस हुआ है, मुझे $314 का लॉस हुआ है। तो टोटल पूरे हफ्ते में मैंने जो वेगस में बिता के काम किया उसकी वजह से जो मुझे लॉस हुआ है वो टोटल हुआ है $84 का, विच एसेंशली मीन्स द हाउस विल ऑलवेज विन। लोग कभी भी कसिनोज इसलिए नहीं चलते हैं कि वो आपको जिताने के लिए नहीं बैठे हुए। एंड दिस रिमाइंड्स मी, जब भी मैं अपनी क्लासेस पढ़ाता हूँ गार्गी में, तो हर सेमेस्टर में मैं 50 मूवीज़ का टारगेट देता हूँ। दिस इज़ ऑलवेज माई एम कि मैं स्टूडेंट्स को बोलूँ कि 50 मूवी देखनी है, कुछ करो ना करो मूवी ज़रूर देखो। तो आपके लिए जो फर्स्ट मूवी मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, एक कर रहा हूँ 21 ज़रूर देखना, और दूसरी मूवी जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा इसके लिए ओशंस 11 एंड ओशंस 13। ओशंस 12 बेकार है, ओशंस 11 एंड ओशंस 13।
ठीक है, वॉच गुड मूवीज़। मूवी देखने से भी आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ कि किस तरीके से दुनिया चल रही है, किस तरीके से सिनेमा चल रहा है, ठीक है। सो जस्ट टेक अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दिस एज वेल। ना यहाँ तक क्लियर है फोक्स? उसके बाद हम और भी कुछ करेंगे। एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट? Excuse me, sir. हाँ बताओ। सर मेरा बग क्रिएट हो रहा है एडिशन वाले में, जब मैंने वो स्पेसिफिक वो डाला है कि मुझे थर्ड नंबर चाहिए और सेकंड चाहिए वो दूसरे वाले बी वेक्टर का। इतने पीछे कैसे रह गए? क्यों, क्या बग आ रहा है? वो आप बोल रहे थे तो दैट इज व्हाई आई डिडंट इंटरप्ट। अच्छा अच्छा, बताओ क्या लिखा हुआ आ रहा है? बग में क्या लिखा हुआ आ रहा है? नीचे कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? एक काम करो, अपनी स्क्रीन शेयर करो। फोक्स फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स इफ यू हैव बग्स शेयर योर स्क्रीन। अनटिल अनलेस आई सी योर स्क्रीन आई कांट से कि क्या कहाँ दिक्कत है। कोई बात नहीं, एक्सटेंड करना होगा, हम 6:30 की बजाय 7 बजे भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बट you should be able to learn once you are done with these 3-4 days. You should be able to know at least your hands on with Excel. Movie names is watch. पहले वो दिखाओ, अपना स्क्रीन शेयर करो। एक देखो 21 एंड दूसरा देखो Ocean's 11 एंड Ocean's 13। मधु तुम्हारी स्क्रीन नहीं आई मेरे पास, कोई नहीं। हाँ यस, अच्छा रुको मेरे पास आ गई स्क्रीन। सॉरी मधु फिर से कर लो। नहीं वो आप फिर से शेयर करो, मधु नहीं आई है स्क्रीन। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन था, बताओ। अच्छा 2026 बैच के हो, बताओ। अरे ये लैंग्वेज आर कर रहे हैं, ये तुम 3rd सेमेस्टर में सीखोगे। अच्छा, और कर सकता हूँ किस कोड पे? हाँ एक सेकंड। अरे एक तो फोक्स, जब आप कोड कर रहे हो ना, प्लीज़ आप एडिट पे जाओ एक बार। मधु एडिट पे जाओ, ज़रा ऊपर जाओ, इस पे नहीं व्यू पे जाओ। इसको जूम इन करो, जूम इन पे क्लिक करो, फिर से जूम इन करो, एक और बार जूम इन करो, हाँ और एक और बार जूम इन करो, ठीक है। ऑब्जेक्ट बी वेक्टर नॉट फाउंड, तुमने बी वेक्टर डिफाइन ही नहीं किया है। बी वेक्टर को रन तो करो, तुमने बी वेक्टर रन ही नहीं किया है। रन करो। अरे नीचे ये तो रहा बी वेक्टर, कहाँ ऊपर पहुँच गए? तुम मेरी फाइल पे वर्क कर रहे हो क्या? सिंपल, इसको रन तो करो। अरे रन मतलब उसको Ctrl+Enter तो करो। तुमने रन ही नहीं किया हुआ है बी वेक्टर। पूरा मत सेलेक्ट करो, सिर्फ ए और बी को वापस सेलेक्ट करो, या सिर्फ बी को सेलेक्ट। हाँ बस यहीं पे Ctrl+Enter मारो। हाँ बस Ctrl+Enter जहाँ पर है वहाँ पर, हाँ पूरे पे पूरा सेलेक्ट करो, पूरा। हाँ ये पूरा, हाँ Ctrl+Enter। हाँ सिर्फ बी वेक्टर रन करो। हाँ बी वेक्टर आ गया ना, अब करो नीचे वाली लाइन रन करो। अब देखो ना, कोड आपको बता देगा ना फोक्स। ये जो कोड है, जो आपको नीचे का कंसोल है, वो आप रन करो इसे। हमारा बी वेक्टर डिफाइंड नहीं, अरे ये देखो, तुमने बी वेक्टर की स्पेलिंग क्या लिखे हैं, ये देख चेक करो। कहाँ कैपिटल है? ऊपर वाला वेक्टर जो है, वेक्टर की स्पेलिंग देखो, नीचे वाले के वेक्टर की स्पेलिंग देखो। हाँ ठीक है। तो फोक्स डरने की कोई बात नहीं है। आप जब आप एरर देख रहे हो तो आपको एरर ही बता देगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है। चलो हाँ बताओ, पूछो। हाँ अरे एक मिनट पहले, अरे रुको। मुझे क्वेश्चन आया ही नहीं। दो लोग बोल रहे थे पहले, कोई एक लड़की बोल रही थी। पूछो, पूरा पूछो। यस, यू आर ऑडिबल नाउ। हाँ क्या कर रहे हो तुम? मैथमेटिकल ऑपरेशन। आंसर टोटल आ रहा है, मतलब टोटल पूरा फॉर्म आ रहा है कि वो लास्ट डिजिट जो होगी वो फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होके आएगा। बट उसमें साथ वार्निंग मैसेज भी आ रहा है। हाँ तो वार्निंग मैसेज आएगा, हाँ वार्निंग मैसेज आने तो क्या दिक्कत है, वो बता रहा है ना तुम्हें।
वो तुम्हें बता रहा है कि बॉस जब आप दो चीज़ें ऐड कर रहे हो तो दो चीज़ें अनइक्वल है, तो वो आपको वार्न कर रहा है, बट ऐड करके नंबर फिर भी दे रहा है आपको, वो वार्निंग मैसेज दे देगा आपको, ठीक है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। देन नेक्स्ट थिंग इज ये आपका टोटल वेक्टर जो है, अच्छा हमारा टोटल वेक्टर a प्लस बी हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था। नाउ लेट्स क्विकली सी, अब हमारे पास टोटल वीक का हमारे पास आ गया कि हमारे पास $84 का लॉस हुआ है। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ, अब ये बूलियन वैल्यूज़ कहाँ यूज़ होंगी, देखो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या टोटल पोकर इज ग्रेटर देन टोटल रूले, कैन आई से दिस, यस और नो फोक्स? क्या टोटल पोकर से मैं जो जीता हूँ वो रूले वेक्टर से ज़्यादा है कि नहीं है? तो जब इसको करोगे तो वो क्या देगा आपको? एंड फोक्स, आपको अगर कोड रन करना है तो आप यहाँ पर भी, अगर आपने यहाँ पर का आपका कर्सर चल रहा है और तब भी आप करोगे, ज़रूरी नहीं आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत, आप यहाँ पर करके सिर्फ कंट्रोल एंटर करोगे या फिर यहाँ पर आप सिर्फ रन दबा दोगे तो भी वो रन कर देगा। तो नाउ यू से, या कैन यू सी कि वो ट्रू बोल रहा है, और अगर आप इसका उल्टा लोगे तो वो आपको फॉल्स बोल देगा कि फॉल्स। और इक्वल टू क्यों यूज़ नहीं करते हैं और डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं? जब आप डबल इक्वल टू कहते हो तो आप कहते हो कि इज इट इक्वल टू, तो जब आप इक्वल टू असाइन करते हो आर के अंदर तो डबल इक्वल टू आप करते हो इसको, तो जब आप इसको करोगे तो वो क्या देगा आपको? वो देगा फॉल्स है, कि ये दोनों बराबर नहीं है। और अगर आपको यूज़ करना है कि ये नहीं है इक्वल एक दूसरे से, नॉट इक्वल टू का साइन होता है ना मैथ्स में, इक्वल टू और उसके ऊपर क्रॉस का साइन होता है, उसके लिए हम कोडिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू अगर यूज़ करना है तो वो कहेगा येस ट्रू, कि ये नॉट इक्वल है, दोनों के दोनों डिफरेंट है। ये हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम अगेन डेटा एनालिटिक्स के अंदर जब हम जाएंगे। डेटा एनालिटिक्स अलग है, डेटा साइंस अलग है। पहले आपको डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए, फिर उसके बाद जब आप प्रिस्क्रिप्टिव डेटा साइंस के अंदर आते हो तो आप डेटा साइंटिस्ट बन जाते हो, ठीक है। तो पहले तो एनालाइज करना, बेसिक चीज़ इज एनालाइजिंग डेटा। तो ये इस तरीके से हमने वो करा हुआ है यहाँ तक। नॉट इक्वल टू नहीं यूज़ करते, नॉट इक्वल टू का कोई साइन ही नहीं होता। कौन सा साइन है बता दो मुझे। 209 पे तो मैंने दोनों इक्वल टू लगाए, उस दोनों इक्वल टू का मीनिंग ही इक्वल टू होता है। तो जब भी लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो पाइथन हो या आर हो, जब भी आपको इक्वल टू दिखाना है तो आप दो इक्वल टू लगाओगे। अगर आप एक इक्वल टू लगाओगे तो पता है क्या करेगा? वो एक इक्वल टू कर देगा कि जो रूले वेक्टर है उसी को पोकर वेक्टर बना देगा। जो असाइनिंग करी थी ना हमने, असाइनिंग याद है? असाइनिंग के लिए मैंने क्या सिंबल यूज़ किया था? मैं इसीलिए आपको मना कर रहा था कि इक्वल टू मत लगाना, ये वाला सिंबल लगाओ, क्योंकि इस वाले सिंबल का मतलब होता है असाइनिंग, ठीक है। बट इक्वल टू का भी मीनिंग असाइनिंग होता है, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए अगर आपने एक इक्वल टू लगाया तो वो दोनों को सेम कर देगा। ये लोग रिमूव क्यों हो रहे हैं मीटिंग से? चलो खैर। देन यू हैव पोकर वेक्टर 2 क्लास। अच्छा अब हमने पोकर वेक्टर 2 देख लेते हैं क्या है। आपने देख लिया कि ट्यूसडे का वो है, ऐसे ही पोकर वेक्टर, तो वही असाइनिंग की बात है। मैंने आपको सारी असाइनिंग वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि असाइनिंग कैसे होती है और ये कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पोकर मिड वीक को आप नया वेक्टर बनाना चाहते हो तो आप वो भी बना सकते हो, ठीक है। सो इफ़ यू वांट दिस तो यू कैन हैव समथिंग। तो इसमें देखो, कैन यू सी व्हाट हैज़ हैपन? यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर पोकर वेक्टर के 3 एलिमेंट्स को एक साथ ऐड किया जाए, फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड फिफ्थ एलिमेंट, एक साथ एक नया वेक्टर बनाया जा रहा है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे का। तो ऐसे ही आपने दूसरे भी करे हुए हैं। तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस। सपोज मैं कहता हूँ मैं उन्हीं दिन, दीज आर द डेज ऑन विच आई वन सम मनी, उसने मुझे दिया मंडे को ट्रू, पोकर वेक्टर प्रॉफिट हुआ है 0 से ज़्यादा, मुझे बूलियन ही वैल्यू है ना। अब उसके बाद मैंने क्या किया, उन डेज को ही सिलेक्ट कर, पोकर वेक्टर के अंदर सबसेट करो दैट that is more yeah. Since I'm also a visiting professor at Labasna, where the civil servants get कि their लाइक सर मैं V3 को मतलब V3 VS कोड पे मतलब ये R लैंग्वेज। I'm not from a computer science background.
लाइक इसके एक्सटेंशंस वगैरह भी डाउन करने पड़ेंगे, तो मेरे को पता नहीं है। ठीक है, ओके। चलो, ओके फोक्स, थैंक यू वेरी मच।